Okay, so as we discussed in the last chapter, uh, our last topic is remaining in unit 3, which is table layout. Okay, so the table is nothing about the combination of rows and columns. Okay, so suppose this is my screen, this is my mobile screen, and we can segregate that screen using table layout like see here row 1, row 2, and row 3. Okay, and this is my the row 1 consists no column, row 2 consists 1 2 3 column. So as per the column naming, column 1, column 2 and column 3, और यहाँ पे दो column है. Okay, so the table is nothing about the table means the combination of rows and columns. So using this rows and column structure, we can design one layout. We can structure the modules, we can structure the views as per according to this row and column. Okay, so the following are the attributes of table layout. First is id, which is common in each and every layout. Rather we can say each and every module in Android. And as I said many times, the id attribute is used to identify the unique location, the unique view, uh, because there are n number of modules, n number of views present in my Android application. So to define uniquely each and every item, we use the id attribute. Okay, then the second is collapse column. Okay, so this collapse columns attribute specifies the zero best index of the columns to collapse. Huh? Means the uh, table layout consists zero best index, okay, of the columns to collapse. The column indices must be separated by a comma 1 2 5. देखते हैं वो एक्चुअल में जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तभी समझ में आ जाएगा कि कोलैप्स कॉलम एग्जैक्टली क्या है. और श्रिंक कॉलम्स जीरो इंडेक्स बेस पे 1 2 5 अगर मैंने ऐसे किया सेपरेट, सो 1 2 और बाद में 3 4 को वो कोलैप्स कर देगा और डायरेक्टली जंप करेगा 5 पे. दैट्स इट. इट सिंपली कोलैप्स द entity, it simply collapse the area of columns. Okay, and the opposite action of the collapse columns is shrink columns. So the zero best index of the columns to shrink, जो collapse किया है वही मैं shrink कर रहा हूँ. The column indices must be separated by a comma 1 to 5. Okay, and after that stretch column, stretch मतलब stretching कर रहा हूँ मैं वह उतनी जगह उसको दे रहा हूँ. So the zero best index of the columns to stretch, the column indices must be separated by comma 1 to 5. Okay, so now this is my main activity.java. So java file is means we simply here we can simply create one layout structure. Okay, and layout means our front end view. So front view में कुछ चेंजेस करने हैं, सो ऑब्वियसली मुझे वो मेन डॉट एक्सएमएल में ही करने हैं, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में, जैसे हम लोग ने बोला था. इफ आई एम सेटिंग अप द if I am activating that layout, like if I am pressing one button, so particular action will be performed, is going to perform. So on that occasion we need to अपडेट, वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस जावा फाइल. ठीक है, तब तक ये जावा फाइल कोई भी चेंज नहीं करेगा, जो जैसी है बाय डिफॉल्ट वैसी वो रहने वाली है, जो हम लोग ने देखा कि सारे लेआउट में कॉमन है. ओके, देन द नेक्स्ट इज एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, जो अपनी ये इंपॉर्टेंट फाइल है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो टेबल लेआउट, आई एम डिक्लेयरिंग टेबल लेआउट यूजिंग दिस XML NS, ये आप लोग को पता है, ये कॉमन ही है. To define individual layout in our Android application screen. Okay, and after that I am simply setting up the width and height of that individual layout. The value of the width and height is fill parent. So वो जितनी parent ने उसकी जगह ली है उतनी वो पूरी जगह लेने वाला है. Okay, then see here I am creating one row, table row, and this row is ended here. Okay, using this slash tab we can close the tab. This is the opening tab and this is my closing tab. Okay, so यहाँ पे देखो टेबल रो मैंने किया है
विड्थ और हाइट दी है फिल पेरेंट, ठीक है। उस मतलब ये रो की कितनी दी है विड्थ और हाइट, जितनी वो पेरेंट की जगह है उतनी वो पूरी पूरी विड्थ लेने वाला है, ओके। ऑन दैट रो आई एम adding two views. First is text view and then next is text clock, okay। so मैं text view ऐड कर रहा हूँ, edit text वाला, जिसका मैंने टेक्स्ट दिया है टाइम, मतलब वहाँ पे टाइम में एंटर कर सकता हूँ, और जो प्लेस होल्डर है वहाँ पे लिख के आएगा टाइम, ओके। एंड विथ हाइट उसके रैप कंटेंट है, और लेआउट कॉलम है 1, ओके। कॉलम मतलब एक ही कॉलम में वो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है अ, मतलब ये रो के अंदर मैंने कॉलम बनाया है, जो कॉलम 1 है टेक्स्ट व्यू, ओके, टाइम नाम का, और दूसरा कॉलम है टेक्स्ट क्लॉक, ओके। सो एक रो के अंदर आई एम एडिंग टू कॉलम्स, फर्स्ट इज टाइम टेक्स्ट व्यू एंड सेकेंड इज दिस क्लॉक टेक्स्ट क्लॉक, क्लियर। देखते हैं आउटपुट, देखते हैं उसका। बाकी इसकी विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी सेम है, आईडी दी है सिर्फ मैंने उसको, क्योंकि आई एम गोइंग टू टारगेट दैट इंडिविजुअल एलिमेंट एट द टाइम ऑफ जावा फाइल अपडेशन, ओके। सो सी हियर, यहाँ पे देखो टाइम और मैंने क्लॉक सेट कर दिया। सो ये एक रो है, कॉलम 1 इज टाइम एंड कॉलम 2 इज वो टाइम क्लॉक जो मैंने क्लॉक यहाँ पे सेट किया है, क्लियर, ओके। आफ्टर दैट आई एम एडिंग अनदर रो, कॉलम 1 इज माई फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम, टेक्स्ट व्यू ही लिया मैंने, एंड कॉलम 2 इज एडिट टेक्स्ट। टेक्स्ट व्यू मतलब अपना नॉर्मल जावा में लेबल, नॉर्मल जो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है उसमें लेबल जो रहते हैं ना, वो सेम एज वर्क करेगा टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉइड। एंड एडिट टेक्स्ट इज माई टेक्स्ट एरिया वेर आई कैन write anything, okay। so I'm setting the width of this text, edit text as now see here, in the single row I'm creating these two different views, like text view, first name or edit text, so see here, देखो फर्स्ट नेम और एडिट टेक्स्ट, देर इज नो सेकेंड कॉलम आई एम असाइनिंग फॉर दिस इंडिविजुअल एडिट टेक्स्ट व्यू, ओके। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एंटायर रो, जो सेकेंड रो है ना, सो दिस टू व्यूज आर included in this entire row, but in this case, in the first case, the entire row is divided into two columns. First is this time edit text वाला, and sorry edit text नहीं, क्या है उसका, टेक्स्ट व्यू, एंड दिस इज माई क्लॉक, ओके। बट इन दिस केस आई एम गोइंग टू सिंपली असाइन टू व्यूज इन अ सिंगल रो। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है, देखते हैं। सी हियर, आई एम क्रिएटिंग थर्ड रो in a sequential manner, name, okay, and on that third row I'm creating same two views as text view for the last name and edit text for that last name text view, where I can write the last name of user, last name of individual. The only difference is the width of the first name is 200 pixel and width of the last name is 100 pixel, that's it, बाकी सब सेम ही है। so see here, यहाँ पे देखो ये width एक्चुअली 100 पिक्सल है, तो वो थोड़ा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, इतना ही वो आएगा, ठीक है, बिकॉज आई एम सेटिंग द width मैन्युअली। width जो है वो रैप पेरेंट या फिर फिल पेरेंट, रैप कंटेंट या फिर फिल पेरेंट नहीं है, ठीक है, ओके। सो अभी तक मैंने 3 रो बनाए हैं और वो 3 रो का आउटपुट भी हम लोग ने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट इज टेबल रो किया मैंने सिलेक्ट, विड्थ और हाइट फिल पेरेंट कर दी, ओके। नाउ आई एम एडिंग द अनदर व्यू, totally new view as a rating bar. So rating bar indicates the review structure where I can rate that individual application. 5 star रहते हैं ना, so out of 5 star, suppose I am giving the 2 star, so it will decide the quality, it will decide the ranking of that individual application, individual Android application. So using this rating bar tag, I am creating one rating bar एंड विथ हाइट मैंने रैप कंटेंट दे दी, आईडी दिया है उसको और कॉलम दिए 2, मतलब 2 कॉलम वो कंजिस्ट करने वाला है,
ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पूरे जितने दो कॉलम ने विड्थ ली है ना, उसने वो पूरी विड्थ ले ली है, और वो रेटिंग स्टार यहाँ पे आ रहा है, टोटल 5 स्टार आ रहे हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट मैंने और एक टेबल रो ऐड किया है, ये एक आई गेस एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, स्किप दिस पार्ट। और माय लास्ट टेबल रो इज फॉर बटन, ओके, वेयर आई कैन ऐड वन बटन। हाँ, बटन में क्या किया है, विड्थ हाइट दी है, टेक्स्ट दी है, सबमिट मतलब सबमिट नाम का बटन क्रिएट होने वाला, आईडी दी है, और वो उतनी जगह ले रहा है, 2 कॉलम की जगह, मतलब जितनी ये रेटिंग बार ने ली है, सेम विड्थ एंड हाइट, सॉरी सेम जगह कॉलम के लिए ये सबमिट बटन भी लेने वाला है। सो दैट्स इट, हम लोग ने ये ऐड कर दिया यूजिंग टेबल लेआउट। ओके, सो आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा ये एग्जैक्टली क्या है टेबल लेआउट, और हाउ वी कैन अरेंज द इंडिविजुअल व्यूज आइटम्स इन आवर table using our table layout. Okay, so we are finished with our third unit where we can see the different layouts in our Android structure, like linear layout, then और क्या था, relative layout, absolute layout. Okay, see here, हाँ, linear layout, उसके बाद relative layout. Okay, और ये individual view we can add on that layout as well. linear layout, relative layout, टेबल लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, फ्रेम लेआउट, लिस्ट एंड ग्रिड। ठीक है, लिस्ट और ग्रिड ये जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में थे वो ये 5 वाले, सो ये 5 हम लोग ने देख लिए, क्लियर। और जो उसके एट्रीब्यूट्स थे लाइक आईडी, उसके बाद विड्थ, हाइट, मैच पेरेंट वो था, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ये भी एडिशनल एट्रीब्यूट्स है। इफ वी वांट टू सेट द मार्जिन एज टॉप बॉटम, या फिर एक ही मार्जिन टैब में हम लोग वो 4 पैरामीटर दे सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। हाँ, we can pass simply 4 values and the compiler will automatically consider those value with respect to top, bottom, left, right. Okay, उसके बाद ग्रेविटी था, वेट था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखे हम लोग ने। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा लेआउट क्या है और लेआउट क्यों डिजाइन करने हैं मुझे। अनलाइक सी प्लस प्लस जावा, वी कैन नॉट फॉलो हियर द फॉर लूप या फिर ऐसा कुछ। अभी वो जावा है तो वो ऑब्वियसली वहां पे आने वाला है, बट एट द टाइम ऑफ डिजाइन वी सिंपली create one view using the layout structure. Okay, one more thing, आपने प्रैक्टिकल देखा है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, बट प्रैक्टिकल में आपको पता चल गया होगा कि वी कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द कंटेंट, वी कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द व्यूज एट अवर एंड्रॉइड स्क्रीन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो हम लोग ने कोड लिखा है ना, तो आप लोग ने अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो बाय डिफॉल्ट कोड आ जाने वाला है। ठीक है, सो ये एंड्रॉइड का बेनिफिट है कि हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट यू हैव टू carefully mention the layout, and as per the layout you have to figure it out the all the views, all the modules in your Android screen. ठीक है, क्योंकि आप लोग ने अगर linear layout mention किया है और आप टेबल की तरह वो अरेंज करना चाहते हो टेबल लेआउट की तरह, so you cannot able to do that thing in Android Studio. So be prepared of what you are going to do, and as per your layout structure, as per your layout background, the views, the modules can be set on your Android screen. So वो ध्यान रखते हुए आप लोग वो डिजाइन कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत लेंदी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यूनिट 5, 4, 5, 6 ही इम्पोर्टेंट है, एंड दोज आर टाइम कंज्यूमिंग यूनिट एज कम्पेयर टू यूनिट 1, 2, 3। जितना यूनिट 1, 2, 3 फास्ट हो गया वो उतना नहीं होने वाला है, बट वी विल ट्राई to focus on the important thing, because only 1 month left to cover entire syllabus of Android, PHP ने अपना Python, और सारे सब्जेक्ट आपसे को 1 महीने में ख़त्म करने। सो वो ध्यान में रखते हुए हम लोग वो हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर फोकस करके वो कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।